Bridge course, class 9th, subject maths, day 27, day 28, day 29. Day 27, unit quadrilateral, subunit rhombus. Let's recall. Rhombus. If all sides of a quadrilateral are of equal length, it is called a rhombus. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस कहते हैं. क्वाड्रिलेटरल EFGH is a rhombus and EF is equals to FG is equals to GH is equals to HE. Properties of a rhombus. First, opposite angles of a rhombus are congruent. रोम्बस के अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं. सो एंगल E एंगल G के इक्वल होगा और एंगल F एंगल H के इक्वल होगा. सेकेंड, डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस. डायगोनल्स अपोजिट एंगल को हाफ हाफ करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. थर्ड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. सो EG इज परपेंडिकुलर ऑन FH एंड FM इज इक्वल्स टू MH, EM इज इक्वल्स टू MG. एग्जाम्पल. फर्स्ट, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस BEST intersect at A. If measurement of angle BTS is equals to 110, then find measurement of angle TBS. Second question, diagonals of a rhombus BST intersect at A. If length TE is equals to 24, length BS is equals to 70, then length TS is equals to what? दोनों एग्जाम्पल को हम यहाँ सॉल्व करेंगे. लेट अस ड्रॉ द फिगर ऑफ rhombus BEST and show the point A. Opposite angles of a rhombus are congruent. So measurement of angle BES is equals to measurement of angle BTS and which is equals to 110. Now measurement of angle BTS plus measurement of angle BES plus measurement of angle TBE plus measurement of angle TSE is equals to 360 डिग्री होता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का एडिशन 360 होता है. So 110 plus 110 plus measurement angle TBE plus measurement angle TSE is equals to 360 degree. So measurement angle TBE plus measurement angle TSE is equals to 360 minus 220 which is equals to 140. यहाँ एंगल TBE और एंगल TSE दोनों अपोजिट एंगल है और दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. सो 2 into measurement of angle TBE is equals to 140 degree. So measurement ऑफ एंगल TBE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. 140 को 2 से डिवाइड करने पर 70 आता है. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल TBS इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 70 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 35 डिग्री. सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 2. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. सो इन ट्राइंगल TAS मेजरमेंट ऑफ एंगल TAS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा. सो लेंथ TA इट इज़ हाफ ऑफ लेंथ TE. सो 1/2 इंटू 24 एंड विच इज इक्वल्स टू 12. सो लेंथ AS इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ लेंथ BS विच इज इक्वल्स टू 1/20 इंटू 70 एंड इट इज इक्वल्स टू 35 यूनिट्स. सो इन ट्राइंगल TAS बाय पाइथागोरस थ्योरम TS square is equals to TA square plus AS square. So TS square is equals to 12 square plus 35 square. TA की वैल्यू 12 है और AS की वैल्यू 35 है. 12 का स्क्वायर 144 होता है और 35 का स्क्वायर 1225 होता है. सो TS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1369 होगा. सो TS इज इक्वल्स टू रूट 1369 होगा. सो फाइनली TS इज इक्वल टू 37, क्योंकि 1369 का अंडर रूट 37 होता है. असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1. लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ABCD आर 16 cm and 12 cm. फाइंड द साइड
and perimeter of the rhombus. इस क्वेश्चन में रोम्बस का साइड और उसका पेरीमीटर मीन्स एडिशन ऑफ ऑल साइड्स मालूम करना है. क्वेश्चन नंबर 2, measure of one angle of a rhombus is 50 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स. एक एंगल का मेजरमेंट 50 डिग्री है, तो बचे हुए तीनों एंगल्स का हमको मेजरमेंट मालूम करना है. सोल्यूशन. फर्स्ट, ABCD is a rhombus. AC is equals to 12 centimeter, BD is equals to 16 centimeter. Diagonals bisect each other at point O. So AO is equals to OC is equals to 6 centimeter and BO is equals to OD is equals to 8 centimeter. So in triangle AOB by Pythagoras theorem, AB square is equals to OA square plus OB square. So AB square is equals to 6 square plus 8 square होगा, which is equals to 36 plus 64 and 36 plus 64 100 होता है. So AB square is equals to 100. So AB is equals to root 100. So AB is equals to 10. Perimeter is equals to 4 into AB. So perimeter is equals to 4 into 10, which is equals to 40 centimeter. Solution of second question. PQRS is a rhombus. So angle P is equals to 50 degree. So angle R is equals to angle P is equals to 50 degree. Opposite angles are equal. So angle P plus angle Q is equals to 180 degree. Interior angles. So 50 degree plus angle Q is equals to 180 degree. So angle Q is equals to 180 minus 50 degree होगा. So angle Q is equals to 130 degree हो जाएगा. So angle S is equals to angle Q is equals to 130 degree, क्योंकि दोनों opposite angles है. Day 28. Subunit parallelogram. Let's recall. Parallelogram. A quadrilateral having opposite sides parallel is called a parallelogram. ऐसा quadrilateral जिसके opposite side एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ऐसे quadrilateral को हम parallelogram कहते हैं. ABCD एक पैरेललोग्राम है. AB CD के पैरेलल है और BC AD के पैरेलल है. Properties of a parallelogram. First, measures of opposite angles of the parallelogram are equal, means opposite angles are congruent. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सेकेंड, लेंथ्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल और दे आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं. थर्ड, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को हाफ ऑफ करते हैं. फोर्थ, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है. एग्जाम्पल. क्वेश्चन 1. PQRS is a parallelogram. T is the point of intersection of its diagonals. Referring the figure, write the answers of the questions given below. फिगर को देखकर आपको आंसर देना है. फर्स्ट, इफ लेंथ PS is equals to 5.4 centimeter, then length QR is equals to what? Second, if length TS is equals to 3.5 centimeter, then length QS is equals to what? Second question, in parallelogram PQRS, if measurement of angle QRS is equals to 118, then measurement of angle QPS is equals to what? Third, in parallelogram PQRS, if measurement of angle SRP is equals to 72 degree, then measurement of angle RPQ is equals to what? Solution देखेंगे examples का. First, in parallelogram PQRS, QR is equals to PS is equals to 5.4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सेकेंड, QS is equals to 2 into TS होगा, which is equals to 2 into 3.5 and it is equals to 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ एंगल QPS is equals to मेजरमेंट ऑफ एंगल QRS, which is equals to 118 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ दोनों एंगल का मेजरमेंट 118 डिग्री होगा. थर्ड, मेजरमेंट ऑफ एंगल RPQ इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल SRP, विच इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट.
अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल WXYZ is a parallelogram. O is the midpoint of intersection of its diagonals. Observe the figure and answer the following question. First, if WZ is equals to 4.5 सेंटीमीटर तो XY कितना होगा। सेकेंड, अगर WO is equals to 3.3 सेंटीमीटर तो YO कितना होगा। अगर YZ is equals to 8.2 सेंटीमीटर देन XW कितना होगा। फोर्थ, इफ OX is equals to 6 सेंटीमीटर देन OZ is equals to what। एंड फिफ्थ, मेजरमेंट ऑफ एंगल WZY is equals to 120 डिग्री देन मेजरमेंट ऑफ एंगल WXY is equals to what। XY और WZ दोनों अपोजिट साइड है, इसलिए XY और WZ दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी XY is equals to 4.5 सेंटीमीटर होगा। सेकेंड, YO और WO दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए YO भी 3.3 सेंटीमीटर होगा। थर्ड, XW और YZ दोनों अपोजिट साइड है, इसलिए XW YZ के इक्वल होगा और XW इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर होगा। फोर्थ, OZ और OX एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए OZ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होगा। फिफ्थ, एंगल WZY और एंगल WXY दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल है, इसलिए एंगल WXY इज इक्वल टू 120 डिग्री होगा। डे 29, सब यूनिट ट्रेपेजियम एंड काइट। लेट्स रिकॉल ट्रेपेजियम। इफ ओनली वन पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is parallel then it is called a trapezium। अगर किसी quadrilateral के साइड्स में से कोई एक पेयर एक दूसरे के पैरेलल हो, दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऐसे quadrilateral को ट्रेपेजियम कहते हैं। WXYZ is a trapezium and WZ is parallel to XY। Property of trapezium. In a trapezium, angles including a non-parallel side are supplementary. Thus, there are two pairs of angles which are supplementary. Trapezium के non-parallel sides पर बनने वाले angles supplementary होते हैं and उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। एंगल W प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल Z प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एग्जाम्पल, फिगर में साइड WZ और साइड XY एक दूसरे के पैरेलल है, इसी तरीके से साइड WX और साइड ZY ऐसे साइड है जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड्स है। काइट, इफ वन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ काइट। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई एक डायगोनल किसी दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को काइट कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ काइट एंड डायगोनल BD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल AC। प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट। फर्स्ट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जैसे यहाँ AB BC के कॉन्ग्रुएंट है और AD DC के कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड, एंगल्स इंक्लूडेड बाय नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। काइट में नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड से जो एंगल बनते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ एंगल BAD और एंगल BCD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इन अ काइट ABCD राइट पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। हमने इससे पहले ही आपको कॉन्ग्रुएंट साइड भी बता दिए हैं। और सेकेंड, राइट अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट, और अपोजिट एंगल की पेयर भी आपको बता दी गई है। असाइनमेंट में आपको दी गई एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। लेफ़्ट साइड से अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर पैरालेलोग्राम की प्रॉपर्टीज़ बताई गई है, उसके बाजू सेकेंड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ है, और थर्ड पर यहाँ रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ है, और राइट साइड में फोर्थ पर स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी है, और सबसे नीचे ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी दिखाई गई है।